ہر شہر ہر خبر میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے رخ کریں گے صوبہ پنجاب کا۔ مراکش کشتی حادثے میں جاں بحق ہونے والے افراد کے ضلع گجرات کے 13 نوجوانوں کی جانیں لے گیا، وہیں پر 20 خوش قسمت پاکستانی نوجوان بچ نکلنے میں کامیاب بھی ہوئے ہیں۔ انہی نوجوانوں میں گجرات کے نواحی گاؤں کے مدثر گھمن بھی خیریت سے گھر پہنچ گئے ہیں۔ مزید تفصیلات جانیں گے شاہد بشیر سے۔ جی شاہد بتائیے گا۔ جی بالکل، اسپین کشتی حادثے میں مرزانہ طور پر زندہ باد جانے والے مدثر گھمن اپنے گھر فتح لمحہ پہنچ چکے ہیں۔ مزید مدثر گھمن سے جانتے ہیں یہ کب برون ملک گئے اور یہ حادثہ کیسے پیش آیا؟ جی میں 22 جون کو کراچی سے جو ہے وہ گیا ہوں برطانیہ، اور وہاں پہ 6-7 مہینے رہا ہوں ان کی رہائش پہ، اور آگے 2 جنوری کو ہم جو ہے وہ کشتی پہ سوار ہوئے ہیں۔ تو 2 جنوری سے جو ہے نا وہ 15 جنوری کو ہمیں مراکش جو ہے نا انہوں نے ریسکیو کیا، مراکش والے شپ نے۔ تو یہ جو ہے 2 جنوری سے 15 تک جو ہے ہم سمندر میں ہی رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ دوست جو ہیں وہ بھی سمندر میں ہی فوت ہوئے ہیں۔ تو ان کے تشدد بھوک پیاس اور سردی کی وجہ سے یہ جو ہے دوست جو ہے نا وہ فوت ہوئے ہیں۔ جی بالکل، آپ نے مدثر گھمن کی بات سنی کہ جس طرح کھلے آسمان نیچے بھوک پیاس اور تشدد سے لوگوں کو انہوں نے مراکش والوں نے قتل کیا، اور یہ بعض بڑے فش کے جو مچھلیاں پکڑنے والے لوگ تھے انہوں نے ان کو بازیاب کر کے کنارے پہ ریسکیو کیا۔ وفاقی حکومت نے ایک بار پھر 5% ریلوے کے کرایوں میں اضافہ کر دیا ہے۔ حکومت کے اس اقدام سے عوام شدید نالاں دکھائی دے رہے ہیں، اور خانیوال میں ٹرینیں کئی گھنٹے لیٹ آنے سے مسافروں کو شدید دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ مزید جان لیں گے شیخ طارق سے۔ جی بالکل، وفاقی حکومت نے ریلوے کے کرایوں میں ایک بار پھر اضافہ کر دیا ہے۔ حکومت کے اس اقدام کے خلاف عوام پھٹ پڑے ہیں۔ اسی والے سے بات کرتے ہیں، ایک مسافر ہمارے ساتھ موجود ہے۔ میں تو حکومت پاکستان سے یہی گزارش کروں گا کہ غریب عوام کے پاس یہ باہر ایک سہارا تھا جو کہ تھوڑے پیسوں میں مسافر سفر کر لیتا تھا، لیکن اب سفر کرنا بھی انتہائی مشکل ہو گیا ہے، اور جو گورنمنٹ نے 5% بڑھا کر اور مزید مہنگائی میں اضافہ کر دیا ہے۔ ہم حکومت پاکستان سے گزارش کریں گے کہ اس کو واپس لیا جائے۔ جیسا کہ آپ نے شہری کی بات سنی، ان کا کہنا ہے کہ عوام پہلے ہی مہنگائی کی چکی میں پس چکی ہیں، اوپر سے حکومت نے ریلوے کے کرایوں میں 5% اضافہ کر دیا، جس سے مہنگائی کا ایک نیا طوفان برپا ہوگا۔ انہوں نے حکومت وقت سے مطالبہ کیا ہے کہ ریلوے کے کرایوں میں جو اضافہ کیا ہے اس کو واپس لیا جائے اور مہنگائی میں بھی کمی کی جائے تاکہ غریب آدمی کو سہولتیں میسر ہو سکیں۔ جی ٹرائی نیشن سیریز کا آج دوسرا میچ نیوزی لینڈ اور ساؤتھ افریقہ کے درمیان قذافی اسٹیڈیم میں کھیلا جا رہا ہے۔ شائقین کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ شائقین کرکٹ کون سی ٹیم کو سپورٹ کر رہے ہیں، جانتے ہیں نمائندہ ABN نیوز علی ناصر سے۔ جی علی ناصر بتائے گا، قذافی اسٹیڈیم میں شائقین کرکٹ کے آنے کا سلسلہ جاری ہے، میچ جاری ہے۔ جی بالکل، میں اس وقت لاہور قذافی اسٹیڈیم کے اندر موجود ہوں۔ آج ٹرائی سیریز کا دوسرا میچ نیوزی لینڈ اور ساؤتھ افریقہ کے درمیان کھیلا جا رہا ہے۔ شائقین کرکٹ کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ حالانکہ آج پاکستان کا میچ نہیں ہے، نیوزی لینڈ اور ساؤتھ افریقہ کا میچ ہے، لیکن شائقین کی ایک بڑی تعداد قذافی اسٹیڈیم کا رخ کر رہی ہے۔ بات کریں گے وہ کیا کہتے ہیں، کون سی ٹیم کو سپورٹ کر رہے ہیں، نیوزی لینڈ کو کر رہے ہیں یا ساؤتھ افریقہ کو، کون سا ان کا آج کے میچ میں فیوریٹ کھلاڑی ہے، اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ کیا کہیں گے، لاہور سے تعلق ہے آپ کا؟ نہیں، شیخ پورہ سے۔ آپ شیخ پورہ سے میچ دیکھنے آئے ہیں؟ جی نیوزی لینڈ اور ساؤتھ افریقہ کا میچ دیکھنے؟ جی بالکل۔ کون سی ٹیم کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ نیوزی لینڈ کو۔ کیوں، کیا وجہ ہے؟ اس کے اندر میرا کین ولیمسن فیوریٹ پلیئر ہے۔ ساؤتھ افریقہ کو نہیں کر رہے آپ؟ نہیں، ساؤتھ افریقہ کو نہیں کر رہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ ابھی اور بھی شائقین کرکٹ سے بات کرتے ہیں۔ اچھا، کیا نام ہے آپ کا؟ نوید صاحب، آپ بھی شیخ پورہ سے آپ کا تعلق ہے؟ شیخ پورہ سے آئے ہیں، پورے گینگ جون سے آپ کا شیخ پورہ سے؟ شیخ پورہ اسپیشل میچ دیکھنے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، تو کون سی ٹیم کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ نیوزی لینڈ کو۔ نیوزی لینڈ، آپ سب نیوزی لینڈ کی ٹیم کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ زبردست ہو گیا۔ کون سا فیوریٹ کھلاڑی ہے آپ کا؟ کین ولیمسن۔ زبردست۔ اچھا، یہ شائقین کرکٹ تھے جن کی آپ نے گفتگو سنی، دوست سب یہاں پر اکٹھے ہو کر شیخ پورہ سے یہاں پر آئے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نیوزی لینڈ کی ٹیم کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور انہوں نے اپنے فیوریٹ کھلاڑی کا نام بتایا۔ آج 3 ملک کی سیریز کا دوسرا میچ ہے نیوزی لینڈ اور ساؤتھ افریقہ کا۔ پاکستان کی ٹیم اپنا پہلا میچ ہار چکی ہے نیوزی لینڈ سے، اور اب کراچی کے اندر ہے، 12 تاریخ کو وہ اپنا میچ ساؤتھ افریقہ کے خلاف کھیلے گی۔ اور کل دونوں ٹیموں کے کپتانوں نے پریس کانفرنس کی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ سیریز بہت اہم ہے، جو بھی جیتے گا پتہ لگے گا کہ ICC چیمپئنز ٹرافی میں وہ کہاں پر کھڑا ہے۔
डेरा गाजी खान के कादिरिया क्रिकेट ग्राउंड में ऑल पाकिस्तान सज्जाद चांडिया प्रीमियर लीग का इफ्तिताह कर दिया गया। सेक्रेटरी जिमखाना मोहम्मद खालिद अब्दुल्ला ने शॉट खेलकर प्रीमियर लीग का आगाज किया है। मजीद जानेंगे शेख ताहिर महराज से। जी शेख ताहिर महराज, प्रीमियर लीग के हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, जहाँ पर ग्राउंड आबाद होते हैं वहाँ पर हस्पताल वीरान होते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ डेरा गाजी खान के कादिरिया क्रिकेट ग्राउंड में, जहाँ पर 14 रोज़ा वनडे क्रिकेट टूर्नामेंट का इफ्तिताह हो चुका है। इस वक्त हमारे साथ सीनियर वाइस प्रेसिडेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स मिर्ज़ा ज़फ़र इकबाल मौजूद है, इनसे जानते हैं। और आपको पता है जहाँ मैदान भरे होते हैं वहाँ पे हमारा जो ओवरऑल सेहतमंद मुआशरे की अक्कासी करते हैं, तो मुझे बड़ी खुशी हुई और मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ काशिफ यूनुस साहब को, जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया और ये पूरे हमारी नौजवान नस्ल के लिए एक उम्मीद है और ये उनके लिए एक पूरा विजन रखते हैं ताकि लोग जो है वो इन ग्राउंडों को आबाद करें। ये टूर्नामेंट लास्ट 15 ईयर से हम करा रहे हैं, तो ये एक पॉजिटिव साइन है। अपर पंजाब से भी प्लेयर्स यहाँ पर आते हैं और हमने लागू किया था कि अपर पंजाब से 2 प्लेयर्स हर टीम में लाजमी होंगे। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ये 14-15 साल से हम ये टूर्नामेंट करा रहे हैं और अब ये 14 दिन का ये इवेंट है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैर करेगा, ये खैर से हो जाएगा। जी बिल्कुल, यहाँ पर मौजूद चेयरमैन क्रिकेट यूनियन का कहना था कि ये टूर्नामेंट जो है हम अपनी मदद आपके तहत कराते हैं। गवर्नमेंट को चाहिए, हुकूमत पंजाब को चाहिए कि हमारे साथ ताउन किया जाए ताकि ग्राउंडों को आबाद किया जा सके। जी खानका डोगरा में मेन जीटी रोड का काम चंद दिन में होने के बाद ठेकेदार काम छोड़कर भाग गया है। मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। शहरियों का कहना है कि 20 साल बाद इस रोड का काम शुरू हुआ था, लेकिन वो भी ठेकेदार अधूरा छोड़कर गायब हो गया। इस पर मजीद तफसीलात जानेंगे मुदस्सिर अली भट्टी से। मुदस्सिर, बताएगा ठेकेदार गायब हो गया। जी बिल्कुल, इसको मैं खानका डोगरा मेन जीटी रोड पर मौजूद हूँ। ये अरसा 20 साल के बाद इस रोड को तमीर का काम शुरू कर दिया गया। मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने एक बड़ा जलसे का इनकार किया जहाँ पर इस रोड की तमीर का काम शुरू किया गया, लेकिन तकरीबन 1 महीना गुजरने के बाद यहाँ पर जो तमीर का काम है बिल्कुल बंद हो गया। ठेकेदार यहाँ पर जो काम को अधूरा छोड़कर यहाँ से रफू चक्कर हो गया, जिसकी वजह से यहाँ पर जो पत्थर पड़ा हुआ है शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना है। शहरियों को कहना है कि 20 साल बाद इस रोड की तमीर का काम शुरू किया गया, लेकिन ठेकेदार इस काम को अधूरा ही छोड़ कर यहाँ से रफू चक्कर हो गया। इसमें मेरे को कुछ शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं मजीद इस हवाले से। मजीद इनका क्या कहना है, क्या कहेंगे? रोड का काम बंद हो गया, कहना क्या है सर, तकरीबन 20 साल के बाद काम शुरू हुआ है और 3-4 दिन काम करने के बावजूद फिर चले गए छोड़ के। ये देखो क्या हाल है इसका। तो वज़ीर आला से गुजारिश है कि इसका काम दोबारा फिर शुरू किया जाए, मेहरबानी होगी। जी बिल्कुल, जैसा कि आप शहरियों की बात सुन रहे हैं, इनका कहना है कि 20 साल बाद यहाँ पर इस रोड की सुनी गई और यहाँ पर जो काम शुरू किया गया था, लेकिन यहाँ पर 2-3 दिन काम शुरू किया गया, उसके बाद यहाँ पर जो ठेकेदार यहाँ का रफू चक्कर हो गया। इन्होंने वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया खुदारा इस रोड को मुकम्मल किया जाए ताकि शहरियों को जो मुश्किलात का सामना करना पड़ा है उनको ना किया जाए। जी लोधरा में जलालपुर मोड़ के साथ कुल्फियों वाली गली में सीवरेज सिस्टम नाकारा। गंदा पानी गली में जमा हो चुका, मच्छरों की बहुतात है। अहले इलाका ने एबीएन न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मच्छरों की बहुतात की वजह से मलेरिया बुखार का शदीद खतरा है। अहले इलाका क्या कहते हैं, मजीद जानेंगे इमरान अली अवान से। जिमरान जी, मैं इस वक्त जलालपुर मोड़ के साथ कुल्फियों वाली गली है वहाँ पर मौजूद हूँ। यहाँ पर सीवरेज सिस्टम नाकारा हो चुका है, आवाम बहुत परेशान है। यहाँ के जो मकीन हैं वो हमें बता रहे हैं कि यहाँ मच्छरों की बहुतात है और हम अपना कारोबार भी नहीं कर सकते और यहाँ पर गंदगी है, बदबू है। तो इस वक्त लोधरा के कुछ शहरी मेरे साथ हैं, इनसे पूछते हैं ये हमें क्या बताते हैं। सूरत हाल जो है इंतहाई तशवीशनाक है। गटर जो हैं वो टूट का शिकार हैं। अंडरग्राउंड जो पाइप हैं वो भी टूट चुके हैं। पानी का कोई लेवल नहीं है। यहाँ पे स्टूडेंट, बच्चे बच्चियाँ, बुज़ुर्ग आमदोरफ्त के लिए उनको बड़ी दुश्वारी पेश आती है। आलियान महल्ला की गुजारिश ये है कि इस सूरत हाल को बेहतर बनाया जाए। जी, शहरी बता रहे थे कि यहाँ पर जो आइसक्रीम वाली गली है जलालपुर मोड़ के साथ, यहाँ पर सीवरेज सिस्टम नाकारा हो चुका है और डिप्टी कमिश्नर समेत दीगर जो आला हुकाम हैं उस पर एक्शन लें और यहाँ का सीवरेज सिस्टम दुरुस्त करवाया जाए। जी ननकाना का रुख करें तो ननकाना साहिब का माल मंडी वाला कब्रिस्तान, जिसको शहर के वस्त में होने की वजह से ननकाना साहिब के मरकजी शहर खामोशा की हैसियत हासिल है। ज्यादातर लोग अपने प्यारों को इसी कब्रिस्तान में दफनाते हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ ये शहर खामोशा भी मसाइल का शिकार हो गया। इस बारे मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदा रियाज ताहिर खान से। जी रियाज।
जी बिल्कुल, शहर खमोशा माल मंडी इस वक्त यहाँ पे कोई जगह खाली नहीं है जहाँ पे लोग अपने प्यारों की जो है वो तदफीन कर सकें। लोगों को सख्त जो है वो मुश्किलात और परेशानी का सामना होता है जब वो अपने प्यारों की तदफीन के लिए इस कब्रिस्तान का रुख करते हैं। इस वक्त मेरे साथ एक समाजी कारकुन मौजूद हैं, हम आइए उनसे पूछते हैं। यहाँ पर कब्रें के लिए जगह बहुत कम पड़ गई है। कब्रिस्तान के शमाल साइड में 2.5 एकड़ जगह मौजूद है, इसको कब्रिस्तान के हवाले किया जाए और मेरी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट से गुजारिश है कि यहाँ पर कोई सरकारी फंड से मिट्टी वगैरह डाल दी जाए और जो गंदगी के ढेर लगे हैं इनको उठवा दिया जाए ताकि लोग यहाँ कब्रें बना सकें और अच्छे तरीके से अपने प्यारों को तदफीन कर सकें। जी बिल्कुल, आपने सुना कि कब्रिस्तान के साथ मुल्हिका 2.5 एकड़ जगह जो इस वक्त जो है वो गंदगी के ढेर और पानी गंदे पानी से भरा पड़ा है। उन्होंने मुतालबा किया है कि अगर ज़िली गवर्नमेंट जो है इसमें ज़ाती दिलचस्पी लेकर उसका ननकाना की आवाम का ख्याल करे तो इसको कब्रिस्तान के साथ शामिल किया जाए ताकि लोग अपने प्यारों की तदफीन जो है वो आसानी और आराम के साथ कर सकें। फाजिलपुर के निजी मेडिकल कॉलेज के ज़ेरे एहतमाम मुकामी होटल के हॉल में एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया जिसमें मेडिकल के तलबा और तालिबात के डिस्पेंसर, लैब टेक्नीशियन, IT समेत दीगर शोबाजात की पोजीशन होल्डर तलबा और तालिबात में तारीफी असनाद, शील्ड्स तकसीम की गई। मज़ीद जानेंगे नवाज शरीफ बुलानी से। जी बिल्कुल, फाजिलपुर रहमान मेडिकल कॉलेज में जो है मेडिकल शोबाजात के जो मुख्तलिफ जो शोबाजात हैं उनमें जो है मुख्तलिफ जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जो डिग्रीज़ हैं वो मुकम्मल हो गई हैं। यहाँ पर जो है साल 2025 का पहला जो एनुअल फंक्शन है वो यहाँ पर मुनक्किद हुआ है। तो हमारे साथ जो है इदारा के डायरेक्टर मौजूद हैं, हम उनसे मज़ीद इस हवाले से जानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे ये बताकर इंतहाई खुशी महसूस हो रही है कि फाजिलपुर जैसे पसमानदा इलाके में हम पिछले 4 साल से मैं और डॉक्टर तारिक अख्तर साहब मिल के एजुकेशन पे वर्क कर रहे हैं और पैरामेडिकल एजुकेशन पे, और सैकड़ों की तादाद में तुलबा और तालबात मुख्तलिफ किस्म के कोर्सेज, डिस्पेंसर, मेडिकल लैब टेक्नीशियन, ऑपरेशन थिएटर, डेंटल टेक्नीशियन, LHV, मिडवाइफ जो है वो यहाँ से जा चुके हैं। जी बिल्कुल, इनका यही कहना था कि जो बच्चे यहाँ से मुल्तान और दीगर जो है लाहौर और बड़े शहरों में जाते हैं उनको जो है तमाम तर जो मेडिकल की सहूलियात हैं वो यहाँ पर मुहैया की गई हैं और उनको जो है डिस्पेंसर क्लास होगी, इस तरह D फार्मेसी, B फार्मेसी तमाम जो है वो यहाँ पर सहूलियात मौजूद हैं। जी 12 कहू के निजी तालीमी इदारे में सालाना तकरीब यौम वालिदैन, फन गाला और फूड फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। प्राइवेट एजुकेशनल सोसाइटी के जोनल सदर राजा खालिद महमूद ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि एक पसमानदा इलाके में बेहतरीन तालीमी सहूलियात के साथ निजी तालीमी इदारे मुल्क व कौम की बेहतरीन खिदमत कर रहे हैं। इंसान को वही कुछ मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है। तकरीब से खिताब करते हुए गुलाम रब्बानी ने बताया कि हमने कम फीस में बच्चों को मियारी तालीम और तरबियत देने का बेड़ा उठाया है। हमें वालिदैन का मुकम्मल एतमाद और ताउन हासिल रहा तो वो दिन दूर नहीं जब हम न सिर्फ इलाके बल्कि वतन अजीज से जहालत के अंधेरे समेट देंगे। और इस मौके पर वालिदैन ने अपने तासुरात में इदारे की कारकर्दगी को सराहा। कसूर बाईपास पर सड़क किनारे खड़ा सदियों पुराना दरख्त जो कभी अपनी छांव से लोगों को राहत देता था मगर अब सूख चुका है और इस किसी भी वक्त गिर भी सकता है जो किसी बड़े सानहा का सबब बन सकता है। मज़ीद जानेंगे मियां काशिफ से। जी शुक्रिया। मैं इस वक्त कसूर दीपालपुर बाईपास पर मौजूद हूँ और ये शहर के बाहर से बनाया जाने वाला बाईपास है जो कि मेन फिरोजपुर रोड को दीपालपुर रोड से मिलाता है। और बात की जाए तो ये आप मेरे अक्का में देख रहे हैं आसमान को छूता हुआ ये दरख्त जो है वो इस इलाके का जो है वो बादशाह समझा जाता था। ये आसमान को छूता हुआ दरख्त किसी भी वक्त जो है वो गिर सकता है। यहाँ पर मेरे साथ कुछ यहाँ पर जो राहगीर हैं मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। ये दरख्त जो है ये बहुत ख़तरनाक हो गया है क्योंकि ये बहुत बड़ा है, तकरीबन इसकी हाइट 100 फुट है और ये इस इलाके का बहुत बड़ा दरख्त था सबसे पहले, लेकिन बाईपास बना है ये सूख गया है और ये सूख गया, बिल्कुल गल गया, ख़त्म हो गया, इसमें दरारें पड़ गई हैं और ये किसी वक्त भी गिर सकता है, नुकसान कर सकता है। यहाँ पर जी आपने राहगीरों की बात सुनी है, इनका यही कहना है कि ये दरख्त सिंपल का दरख्त जो है इस इलाके का बादशाह हुआ करता था लेकिन अभी सूख चुका है वक्त के साथ साथ। का यही कहना है कि फौरी तौर पर नोटिस लेकर इस दरख्त को, सिंपल के दरख्त को जो है वो काटा जाए ताकि किसी भी बड़े साने से जो है वो बचा जा सके। जी नाज़रीन, हर शहर हर खबर में रुख करेंगे सुबह खैबर पख्तूनख्वा का।
बनू थाना अमताजई की हदूद में पुलिस एहलकार समेत 2 अफराद को अगवा करके पहाड़ी में कत्ल कर दिया गया। मुलजिमान ने कांस्टेबल रियाजुल्लाह और हबीबुल्लाह को यरगमाल बनाया था। कांस्टेबल रियाजुल्लाह थाना अमतनजई में ड्यूटी सरंजाम दे रहा था। मुग़ियों को फायरिंग करके कत्ल किया गया। पुलिस के मुताबिक दोनों मकतूलीन को कत्ल करने की वीडियो भी जारी हुई है। वाक़या पुरानी दुश्मनी का शाखसाना है। कांस्टेबल रियाजुल्लाह थाना अमतनजई में ड्यूटी सरंजाम दे रहा था। कत्ल का वाक़या पुरानी दुश्मनी का शाखसाना है, पुलिस ज़राए की जानिब से ऐसा बताया गया। सूबाई हुकूमत पर जहां सरकारी वसाइल अपनी सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम है, वहां पर इनकी आए रोज़ नाक़िस पॉलिसियों से कारोबारी तबका भी मसाइल से दो चार है। टिम्बर एसोसिएशन कहती है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को दूसरे महकमों में ज़म किया जाए, इसकी कारकर्दगी ना होने के बराबर है। एहतजाज हमारा आईनी हक है, हम मजीद जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकते। मजीद जानेंगे बख्त मोहम्मद यूसुफ जई से। जी बख्त मोहम्मद, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, एक तरफ अगर अहले कलम सूबाई हुकूमत के गलत पॉलिसियों के ख़िलाफ़ सरापा एहतजाज है, तो दूसरी तरफ लकड़ियों के कारोबार से वाबस्ता अफराद भी हुकूमती पॉलिसियों से नाला हैं। इस वक्त मैं इन्हीं इत्तेहादिये के साथ मौजूद हूँ, इनसे जाने की कोशिश करेंगे। कंटेनर में लकड़ी हम जो लोड करते हैं ना, तो इसके ऊपर इसने परमिट लगाई है। अब परमिट भी हम देते हैं, इसके बावजूद भी ये लोग वहाँ पर उसको तंग करते हैं। तो फिर जब तंग करते हैं तो फिर परमिट क्यों देते हैं? जब परमिट दे दिया तो फिर तो कोई मसला नहीं है। अब अगर इसलिए और मसले पैदा कर दिया कि भाई एक तो ये परमिट कंटेनर जो लोड हो रही है इसको यहाँ पर भी पैसे लेते हैं, फिर वहाँ पर चेक पोस्ट में भी पैसे लेते हैं। दूसरा मसला ये है कि भाई इसने परमिट का रेट भी बढ़ाया है। तीसरा मसला, अब अगर इसने ये हमारे मुतालबात ना माने तो फिर हम भरपूर एहतजाज करेंगे। जुमेरात को इंशाल्लाह रोड बंद करेंगे, मोटरवे पे भरपूर एहतजाज करेंगे, क्योंकि हमारे साथ जुल्म हो रहा है, ज़्यादती है। ये एक मसला है, यहाँ का फसल है, यहाँ KPK का ये फसल है, इस पे सारा पाकिस्तान की जो फैक्ट्रियाँ ये चलती है। अब अगर इसको हम लोड नहीं करेंगे, ना भेजेंगे, तो फिर फैक्ट्रियों वाले क्या करेंगे? माचिस कहाँ से लोड करेंगे, कहाँ से निकालेंगे, क्या करेंगे? ये हमारा मसला है भाई, बहुत बड़ा। हाँ बिल्कुल, इन लोगों का यही कहना है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है वो हमें बेजा तंग कर रहे हैं और रिश्वत का मुतालबा कर रहे हैं। ये लोगों का यही भी कहना है कि अगर हमारे मुतालबात 2 दिन में पूरे नहीं हुए तो आने वाले जुमरात के दिन हम रशक इंटरचेंज पर एहतजाज देने पर मजबूर होंगे। जी, चारसदा की तारीख में पहली बार घरेलू पालतू जानवरों का मुनफरिद शो मुनक्किद हुआ, जिसमें स्कूल के बच्चों ने भरपूर शिरकत की। बच्चों ने अपने पालतू जानवर सबके सामने पेश किया और इनकी देखभाल से मुतालिक दिलचस्प कहानियां भी सुनाई। मजीद देखते हैं अलिफ खान शेरपाव की ये रिपोर्ट। चारसदा में पहली बार घरेलू पालतू जानवरों का एक खुसूसी शो मुनक्किद हुआ, जहां स्कूल के बच्चों ने अपने पालतू जानवरों को सबके सामने पेश किया। इस शो में बिल्लियां, कुत्ते, परिंदे और दीगर जानवर शामिल थे। इसका मकसद बच्चों में जानवरों की देखभाल और इनसे मोहब्बत का शऊर उजागर करना था। मेरा मानो है, ये मैंने वो पाली है। सारा दिन घर का काम काज में हम वो बस बिजी रहते हैं, तो इसलिए हमने ये सोचा कि चलो एक पेट वो लेते हैं और इसके साथ अपने खुद को बिजी रखते हैं। कि बेस भी ये पहला इवेंट है कि यहाँ पे हुआ है, सारे लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि हमने अपनी ज़िंदगी को बहुत मसरूफ़ किया है और यही एक मौका है कि अपने ज़हन को हमने पुरसुकून बनाया। माहिरीन का कहना है कि मौसमियाती तब्दीली, क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारे माहौलियाती निज़ाम, इकोसिस्टम पर मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं, जिसके नतीजे में मुख्तलिफ जानवरों की अफजाइश मुतासर हो रही है। कि बच्चों को एक मुस्बत सरगर्मियाँ दे दी, तो हमने उसके लिए घरों में पालतू जानवरों के हवाले से पेट शो का प्रोग्राम करवा दिया और उसमें वो बच्चों ने आज जो मुख्तलिफ वो जानवर लाए थे, उसमें जो कबूतर थे, उसमें वो जो पीकाक थी, ताउस थी, और उसमें इस तरह मुख्तलिफ जो कुत्ते थे, उनके हवाले से वो मुख्तलिफ जितने भी लोगों ने घरों में जानवर पाते उन्हें लाए थे। माहिरीन के मुताबिक ऐसी इवेंट्स न सिर्फ बच्चों में जानवरों से मोहब्बत और इनकी देखभाल का शऊर उजागर करते हैं, बल्कि माहौल और जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत को भी नुमाया करते हैं। कैमरामैन यासर खान के साथ अलिफ खान शेरपो, ABN न्यूज़, चारसदा। आज़ाद कश्मीर से आपको बताएं, बल्दियाती इंतखाबात को हुए 2 साल का अरसा गुजर गया, बल्दियाती नुमाइंदगान को इख्तियारात ना मिल सके। पानवाला से भी बल्दियाती नुमाइंदगान और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदगान रैली की शक्ल में कॉन्स्टिट्यूशन में शिरकत करेंगे।
हमारे लोगों के छोटे छोटे मामलात हैं, उनमें लोकल सतह पे यहाँ बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, लोगों के ज़मीनों के मामलात हैं, उनको वो मामला वो जो लोगों को बुनियादी सहूलियात हैं उनको लोकल स्टेशन पे मिलनी चाहिए, मगर 2 साल का अरसा गुजर चुका है। वज़ीर-ए-आज़म साहब, मैं नहीं समझता कि वो रोज़ शाम को एक लंबा चौड़ा भाषण तो ज़रूर देते हैं कि मगर इस तरफ उनकी कोई तवज्जो नहीं। तो इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद से हम इस दफ़ा ये तमाम मामलात अल्लाह